पिक्चर अगर डेफिनेट हिट है, अगर हिट हो जाएगा ना तो दूसरा टाइटल आप रखना, मन्नू क्या करेगा अभी है, लेकिन मन्नू करेगा धमाल। बुला बुरा है सारा जमाना, दिल घबराए रे, भला भला है तू यार, तेरी फिक्र सताए रे। मन्नू मूड मनमाना है, मन्नू कभी मनाना है, मन्नू राम ही जाने मन्नू तेरा क्या होगा। मन्नू कभी लगता हीरो, मन्नू कभी लगता हीरो, मन्नू राम ही जाने मन्नू तेरा क्या होगा। bazooka 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 Decide to keep playing it over and over again so that we can all feel the buzz in the beginning of it. But ladies and gentlemen, Vyom and Sachi, big round of applause for them. We're deciding to have the performance again. It's like an encore before the actual performance has actually happened. Let's have it. ले जाए कहाँ जाए मेरी नजर, bazooka 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 पूरी पिक्चर बना ली, पूरी डबिंग कर ली, अपनी परफॉर्मेंस देख ली, सब आपने ग्रेडिंग अपने आप कर ली, लेकिन इट ऑल बिकम्स ऑन दैट साइड ऑफ द डोर. आज जब दरवाजा खुल गया है इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, आई नो ऑफ कोर्स देयर बटरफ्लाइज, बट व्हाट्स द फीलिंग लाइक? इज इट रिलीफ? इज इट एक्साइटमेंट? व्हाट्स इट लाइक यार? I'll be honest, I'm very nervous right now because हमने इतने सारे दिग्गज एक साथ. I'm very, very nervous because तो ऊपर देखो, don't look down at them. It always helps. I can never look down on them. I have to look up to them so that I can become like them. Well done. And, Well done. And of course, it's my first film, and I am very excited कि जो हमने मेहनत की है, प्यार डाला है इस फिल्म में सब लोगों ने. It's not just two of us, obviously. डांस तो हम ही कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब थोड़े से डांस में थोड़े से वीक है, लेकिन अदरवाइज they've made it possible for us to stand here, to look good on the screens, to put us out there, give us the platform, and I'm really thankful to Sharad sir, to Lalit sir for giving us this beautiful album. Shan sir is here with us. Thank you so much. I love you all. Vivek sir, Sanjay Tripathi sir, our director, he's there. Malini ma'am, thank you so much, and thank you so much for being here, yaar. I mean, I know मतलब ये thank you speech, first speech कैसे बन गया, लेकिन I'm so grateful right now. And over to Sachi because मैं बहुत ज़्यादा भूल जाऊँगा नहीं तो otherwise. But love you all, seriously. But today is a day we're going to hear a lot of you. So big round of applause, ladies and gentlemen, Vyom के लिए. Sachi, there's always this beautiful Instagram की दुनिया से बाहर निकल के जब बड़े पर्दे की दुनिया में आ जाते हैं तो ऑलवेज ऐसा रहता है, you start seeing how you're looking. मैंने तो कुछ sneak peeks देख लिए हैं. You're looking wonderful. You performed wonderfully also. But what's the one thing that you wanted? आज you must have been having a very sleepless night last night.
कि आज Not सबके just last night. अच्छा many nights It's just 3 nights we've not slept. तो पहले कुछ शब्द जो बोलना चाह रहे थे सारे लोगों से मीडिया से, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे मीटिंग यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? Firstly, thank you for being here for us. It really means a lot. बहुत सारी feelings से अभी. Just walk a step forward should be fine, yeah. बहुत सारी feelings है. बेटा वो खाना ना और- इवेंट से पहले था, नाउ यू कैन सिट डाउन, थैंक यू. थोड़ी सी nervousness है. It feels surreal, but I think सबसे ज़्यादा जो emotion मैं अभी feel कर रही हूँ खुशी है, because I think I've dreamt of this. ये सपना मैंने तब देखा था जब शायद मैं बहुत छोटी थी, since I can remember. And not just me, I think ये मेरी mom का सपना था. And That, ladies and gentlemen, is her mother. Big round of applause. Welcome, ma'am. And congratulations to you as well. And I feel for me to be here today with my family, I think I'm extremely lucky. All of them are here, and I just hope to make them proud. And all of this is only because of my team here, my Sharat sir, Jannat ma'am, Sanjay sir, Vivek sir, everybody. It wouldn't have been possible without you all. So thank you so much. Rab Rakha. And Salil, just 1 second. I'm so sorry. I forgot Udit sir is here. Yeah. I mean. Arey Udit sir, the Thank you great so Udit much. sir. Thank you so much sir for joining us. आपकी जरूरत सर बहुत लगेगी स्टेज पर कुछ देर के बाद सर. थैंक यू. बट ऑल्सो बात है, द वन क्वालिटी दैट यू रियली लाइक्ड अबाउट हिम एंड वन क्वालिटी जो आपको सांची के बारे में बहुत पसंद है. Ladies first. नहीं ऐसा नहीं है, ठीक you know, है, as a बोल person. देती हूँ, हाँ बिल्कुल. चलेगा. I feel एक चीज़ इसके मुंह से मैंने हमेशा सुना है कि कोई स्ट्रेस मत ले, और मैं आई थिंक वो पर्सन हूँ जो हमेशा बहुत ओवरथिंक करती है, या फिर हमेशा लाइक आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग कि अच्छा ये वाला सीन है, कल ये वाला सीन है, बट ये एफर्टलेसली वो सीन को प्रिपेयर कर लेता है और फिर कोई स्ट्रेस नहीं है. सेट पे ही इज लाइक ओके, इट विल गो वेरी गोइंग विद द फ्लो टाइप ऑफ अ पर्सन. सो आई फील दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम. She looks less stressed right now and you look more stressed right now. Exactly. Sorry for letting you down today, यार. At the final day मैं देवन से बोलते आ गया कि कोई स्ट्रेस मत ले, कोई स्ट्रेस मत ले. Finally आके भाई मैं नर्वस हूँ, ये ठीक है. So I'm really sorry for that. But One she's- quality. Yes, of course. See, the thing is कि obviously मतलब मैं ना better at hiding कि हमको stress नहीं हो रहा है, लेकिन it's all because of the lady who's next to you. That's what displaces Brother, the it's जो stress. लाइनें आप लिख के आए हैं किताब में, it's working very well today. Huh? You're winning it all over. And mind it, it's my debut, huh? Well done. Charming and height भी है, सब कुछ is working all for you all. Thank So you so big round of much. applause, ladies and gentlemen. You all take a seat. Thank you. I'll be calling you all back on stage from stage left. Yes. Thank you so much. मन्नू क्या करेगी? मल्टी टैलेंटेड है, 2 गाने भी लिखे हैं उन्होंने. So ladies and gentlemen, please welcome both of them on stage. बिफोर हम लोग हमनवा प्ले करें सर, आपके अंदर की कैसी फीलिंग आ रही है सर? आपने काफी सोचा होगा इस दिन के बारे में जब पूरी दुनिया के सामने आप प्रेजेंट करेंगे. शरद जी कुछ शब्द हो जाए. मेरी भी हालत थोड़ी व्योम जैसी हो रही है. वो तो थोड़ा ट्रेंड एक्टर है, मैं तो वो भी नहीं हूँ, बट यस नर्वस, एक्साइटेड, बट रियली वेरी हैप्पी. जो जर्नी रही है, और सबसे पहले मैंने एक किसी भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करीब 1-1.5 साल पहले इसी हॉल में देखा था. एक पिक्चर थी 800. तो सचिन तेंदुलकर वाज हियर, मुरलीधरन वाज देयर. सर मैं भी यहीं था. आप भी वहीं थे. मैं आपका भी नाम ले रहा था. यस यस. तो उसके बाद अब इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर, एंड आई थिंक एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, हैप्पीनेस, बट अ क्रिएटिव प्लेजर इन व्हाटएवर वाज डन, बिकॉज आई थिंक Sachi and Vyom have done a terrific job. Lalit sir has done something outstanding, and all of us, the entire team. So very happy and proud. वंडरफुल. ललित जी, जब भी कोई नई फिल्म प्रोजेक्ट आ जाती है, कभी भी ऐसा लगता है कि यार आज मेरे को राइटर्स ब्लॉक हो रहा है, या फिर मैं बना पाऊंगा कि नहीं, अपने खुद के उम्मीदों पर खरे उतर पाऊंगा कि नहीं? आज भी इतने एक्सपीरियंस होके, इतने लेजेंडरी स्टेटस पर पहुंच के, ऐसे कभी भी सोच आती है? कभी भी
फ्रैंकली मुझे तो ऐसा नहीं आता, मैं हमेशा ही बहुत प्रिपेयर्ड रहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो ऐसे ऐसे दौर से गुजरा हूँ जहाँ कभी काम नहीं था, कभी बहुत था, और मैं लेकिन काम करता ही रहता हूँ। तो जब शरद जी आए थे मेरे पास, तब कुछ गाने तो हम मेरे दिमाग में थे ही, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर म्यूज़िक जो अच्छा होता है, जो बनता है, और मैंने तो इतने साल काम किया है, आप लोग आजकल तो मुझे लोग सर बोलते हैं तो मुझे अजीब लगता है, तो ऐसा मत बोला करिए आप। मुझे आगे बहुत काम करना है। तो ऐसा था कि जब ये आए थे तब मुझे ये दिमाग में आ गया था कि बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका म्यूज़िक का, जो कि एक अच्छा म्यूज़िक देने के लिए बहुत ही एक अहम फैक्टर है। ये मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने मेरे बेटों को भी कहा और जो मेरे सिंगर्स दोस्त हैं उनको भी ये कहा था कि इस म्यूज़िक में हमें करना है करेक्ट काम। तो इनका बहुत अच्छा साथ रहा, जन्नत का बहुत अच्छा रहा, और फिर मेरी जो टीम है वंडरफुल सिंगर्स, ये तो सब साथ थे। तो एक ऐसा म्यूज़िक बन के आया है जो कि मैं सोचता था कि एक पिक्चर में ऐसा म्यूज़िक दूँ जिसमें सारे गाने अच्छे हों, जो कि अक्सर जो मैंने पहले किया है उसमें हो जाता था। मगर आपको ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आप वो कर सकें जो आपके दिल में है, और आप एक एल्बम बनाएं जो एक यादगार हो। इस फिल्म में मुझे वाकई ये लगता है बहुत सालों के बाद कि सारे गाने पिक्चर के बहुत अच्छे बने हैं। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ म्यूज़िक, आजकल जो भी म्यूज़िक आता है बहुत अच्छा आता है, मगर फिर भी एक आध गाना ऐसा आ जाता है जो आउटस्टैंडिंग है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा म्यूज़िक ही आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए, मेहनत तो हर काम में अच्छी होती है, मगर मेहनत करने के बाद जब लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है और वो मिल जाता है आपके दिल को खुशी कि नहीं आपने करेक्ट डिलीवर कर दिया है, तो एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है। और इससे बेटर मोमेंट हो नहीं सकता अगर आपने अपना काम देख लिया और आप अगर संतुष्ट हो गए। एक बैट्समैन की तरह होता है, जब वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव पर चौका जाती है, यू जस्ट नो इट्स परफेक्ट सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, प्लीज डू टेक अ सीट। थैंक यू। यस सर। एंड द रील सन एंड अदर, रील मतलब कि जो स्क्रीन पर, रील REEL। आजकल हमारा रोज इंस्टाग्राम वाली रील्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्चुअली रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। व्योम एंड चारू मैम, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज, ताकि हम लोग ये परफॉर्मेंस कर पाए। और थोड़ी सी रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ये देख चुका हूं पहले। सो वेल डन सर, आर यू रेडी? वेलकम टू द शो। सो ये जो रिविजन वाला मैंने ऑलरेडी गाना सुना दिया। राजेश जी, आर यू रेडी? रेडी एंड गो। आखिरी के 5 सेकंड वाज इम्प्रोवाइज्ड। आई लव इट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल। कैन यू प्लीज हैव अ सीट? थैंक यू सो मच। तो आपने बहुत महसूस किया है तभी आपने लिखा, या हाउ? बिकॉज लिखे तो आप ही ने सर ये सारे शब्द। आपने जवाब खुद ही दे दिया उसमें कि जितनी बार दिल टूटा है एक एक शब्द वहीं से निकला है। बट आई थिंक इट वाज रियली द म्यूजिक दैट वाज देयर। वो अंदर से एक फीलिंग आ रही थी। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि जब गाना ये बन रहा था तो एक्चुअली काफ़ी प्रेशर में आया था मैं, और ये गाना फिल्म में नहीं था। अच्छा, ये गाना फिल्म में नहीं था कि बहुत अच्छा गाना हम आगे यूज़ करेंगे। लेकिन एक बार जब प्रोडक्शन के दौरान शाम को वी वर ऑल सिटिंग दैट इवनिंग, तो सारे हम अपने पिक्चरों के गाने सुन रहे थे, और कहीं पे ये गाना जब चला तो जितने ये सब लोग बैठे हैं, संजय, चारू, व्योम, साची, दे ऑल वर आफ्टर व्हाटएवर इट इज, ये गाना तो लेना ही है फिल्म में। एंड देन वी टॉक। इट वाज नॉट पिक्चराइज्ड एट दैट टाइम? नो। अच्छा, सिर्फ गाना था बस? सिर्फ एक ट्यून थी अच्छा। इनके साथ एक बनाई हुई। तो ये हुआ था इस गाने को शायद बहुत ज़्यादा गाने हो रहे हैं पिक्चर में, इसको लेते नहीं हैं। बट उसके बाद जब पूरा यूनिट वाज दिस थिंग कि अगर ये गाना नहीं आएगा तो कल से काम नहीं होगा। बड़ा शैतान यूनिट था, इसलिए प्रेशर में आके ये फिर गाना बनाना ही पड़ा। और वो दिल से आवाज़ निकल रही थी, कुछ तो हार्ट ब्रेक हुआ था और कुछ पिक्चर ओवर बजट जा रही थी। तो दोनों चीज़ें हुई और गाना बन गया। सर ये एग्जैक्ट सेम कहानी सच है ये? मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। इनफैक्ट मैं अभी सोच रहा था कि अभी मैं इन सबको बुलाऊंगा गाना
जब हमारा सेशन होगा. आई रिमेंबर सम वंडरफुल सेशंस दैट वी हैव हैड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. इतना मज़ा आता था, जैसे म्यूज़िक बनना चाहिए ये उस डायरेक्शन में बना है, तो उसका एक मज़ा आता है, एक नशा आता है काम करने का. इनफैक्ट इस पिक्चर का जो नींव है और जो स्टार्ट थी, वो शूटिंग वगैरह कास्टिंग वगैरह किसी चीज़ से नहीं थी, सिर्फ म्यूज़िक से हम लोग स्टार्ट हुए थे. और बस मैं क्या बोलूँ, इतनी अच्छी जर्नी रही कि अभी बहुत मेमोरेबल लगता है कि इतना अच्छा काम हो गया, मगर टाइम लगाओ तो अच्छा हो जाता है. मैंने बट एक चीज़ और सलील, इस गाने के बारे में कि आई थिंक अभी तो छोटा सा एक स्निपेट देखा, बट व्योम हैज़ डन a terrific job in this song. जो अंदर से ना, इसका भी बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, जो अंदर से वो आ रहा था ना, that every feeling, every tear that was there, it was done so naturally and beautifully कि जब जो लोग देख भी रहे थे शूटिंग के टाइम पे, they could just feel it. और ये गाना मुझे तो ऐसा लगता है कि जब सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस गाने में. So very special. मैं एक बात और बोलना हीरोइक भी चाहूँगा. है सर, ये हीरोइक गाना भी है. जो जितना भी थोड़ा सा देखा है हमने, हिज मूवमेंट्स आर वेरी हीरो. एक हीरो को एक हीरोइक हार्ट ब्रेक वाला गाना जरूरी होता है गाने फिल्म में. आई थिंक दिस इज दैट फॉर हिम. इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा that this is one of the best song written in the film, which is written by Sharat ji. I love this song and the mood that has come out of it, and of course the way Mohit has sung. He's not here with us today. मगर मज़ा आ गया था ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, और the contribution of musicians and everything else was wonderful. I want to talk about Mohit also, somebody who, you know, we all love. And there was एक दौर था, मुझे याद है, जब पीलू और ये सारे गाने चल रहे थे. So much of Mohit was there. कई बार आप उनसे पूछते हो थोड़ा और रह जाया करो यार मुंबई में. You know, just your interaction with him, he's just, sometimes he's a very you know, there but not there personality. तो कुछ मोहित सर से बातें जो हुई कि भाई वापस मुंबई थोड़ा आ जाइए, थोड़ी और रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं. Maybe after this song we'll see a lot more of him. देखिए, आई एम तो वेरी प्रिंसिपल इन माय वे ऑफ वर्क. मैं बहुत रिहर्सल्स करता हूँ सिंगर्स के साथ. मुझे बैठना पड़ता है और मुझे बताना पड़ता है कि मुझे कैसे मेरे दिमाग में गाना है, और फिर उसमें वंस वो ढल जाते हैं उसमें मैं करता हूँ. तो मोहित ने इसमें तो बहुत अच्छा काम किया है. ही लव दिस सॉन्ग इन फैक्ट. और मुझे ऐसा लगता है जब किसी आर्टिस्ट को ये, जैसे इनको लग गया था कि ये गाना बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, पता नहीं है इनको कैसे आया, वैसे सिंगर्स में भी ये बहुत ज़रूरी बात है कि रिहर्स करें गाने को, उसमें अपने आप को ढालें और फिर गाएं. ये एक आदत है हमारी कि प्रोसेस ऑफ काम. तो इसमें तो मोहित ने बहुत अच्छा रिहर्सल किया था. इनफैक्ट वी रिहर्स फॉर a few days for this song, and then we मुझे तो आवाज़ भी बहुत पसंद है रोहित की, and the idea of Rohit singing this particular song was Sharad and Jannat's idea. So I think there was a tremendous involvement of everything that happened in this, and I think the result is too satisfactory, I must say. Absolutely, way beyond satisfactory. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much. Thank you, thank you. हर एक गाने के ऐसे ही है सर. पीछे माइक ले लीजिए जरूर. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच आने के लिए. आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग. माइक में आवाज कम तो नहीं है? नहीं, मुझे भी लग रहा है. आप मेरा माइक ले लीजिए सर. आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब. सबसे पहले तो मैं मन्नू क्या करेगा को बधाइयाँ देता हूँ. उनके पूरे टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ. पिक्चर शॉर्ट हिट है, लेकिन शरद जी एक रिक्वेस्ट है आपसे. पिक्चर अगर डेफिनेट हिट है, अगर हिट हो जाएगा ना, तो दूसरा टाइटल आप रखना, मन्नू क्या करेगा अभी है, लेकिन मन्नू करेगा धमाल. जी, I have been entertaining you all for more than 45 years. अरे भाई, इसी के लिए था लिया. एग्जैक्टली मेरी उम्र. जी, बिल्कुल सर. ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक मेल सिंगर 45 साल का करियर पूरा किया है, एंड थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस, स्टिल स्ट्रांग. यस सर. Thanks to entire film industry, my music directors, writers, everyone, technicians, everyone. आज इतने सालों का सफ़र है, और आज भी पंडित जी, हमारे ललित पंडित जी ने, पहले तो जतिन ललित जी थे,
तो उन्होंने एक से एक फिल्मों में मुझे गवाए, DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है वगैरह वगैरह, मतलब अनगिनत है। और सारे फिल्म म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। बिल्कुल जी। और यही प्यार और आशीर्वाद रहा तो आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलेगा। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं छूटे ना कोई आंखों में जो था सपना। आजा संग मेरे यारा, खुद से ये कर ले वादा, टूटेंगे ना ही सारी बाजियां। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना आंखों में जो था सपना। थैंक यू सो मच। रुकिए सर, मैं एक्चुअली एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मुझे भी रेडियो करते हुए अभी ऑलमोस्ट 22 साल हो गए हैं, और बहुत बार सिंगर्स हमारे स्टूडियो में आते हैं, और सुबह का शो रहता है 7 से 11 के बीच में, और आप सोचते हो कि क्या हमारे सिंगर्स तैयार हैं, यू नो, समटाइम्स कभी एक कॉफ़ी नहीं पिए होती है, कई बार लेट नाइट रिकॉर्डिंग रहती है। उदित जी की ऐसी एक आवाज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2005 की एक रिकॉर्डिंग पॉज कर दी होती और आज 2025 में उस रिकॉर्डिंग को रीस्टार्ट करें, तो टोन, क्वालिटी, हर चीज वो आज भी मैच कर लेंगे। दैट इज जस्ट हिज गिफ्ट दैट ही हैज, एंड वेरी रेयरली डज दिस हैपन। लोगों की आवाजें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी आ चुका है, AI आ चुका है, लेकिन उदित जी, योर वॉइस इज आल्सो एवरग्रीन सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो सच मच। जॉय। लेकिन एक बात और कहूंगा कि ललित पंडित जी ने कंजूसी किया है। अच्छा, इन्होंने सोचा होगा साला ये तो बुढ़ा हो गया, अभी क्या गाएगा, लेकिन इनको पता नहीं मैं कयामत से कयामत तक चलने वाला हूँ। शुक्रिया सर। पार्ट टू में जरूर। और दिस इज योर्स। जी, मैं अपने पास ही रख लेता हूं। देखिए, स्लिप कंपोज बाय ललित जी हिमसेल्फ। आकृति और शान के तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड कैन वी हैव अनदर माइक प्लीज? थैंक यू। आकृति, वेरी टॉपिकल सॉन्ग। हल्की हल्की बारिशें तो हो ही रही हैं, और बहुत ही प्यारा गाना है। और ऑफ कोर्स जैसे ललित जी ने कहा कि जब खुद अंदर से ही आवाज़ आती है कि इस गाने में, और ऑफ कोर्स फिर जब समटाइम सिंगर्स आर द लास्ट कॉग ऑन द व्हील, सारा सब कुछ तैयार हो जाता है, फिर आपको आकर उस चीज़ पर अपना एक स्टैम्प रखना होता है। लेकिन सबसे पहले तो जस्ट टू गेट ओवर सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी, टू गेट ओवर सच ब्यूटीफुल लिरिक्स, और जिस तरह से पूरे गाने का एक फील मिलता है कि गाते गाते ही लग रहा था कि बारिशें, तब तो बारिशों की मौसम नहीं थी, बट आई एम ग्लैड कि जब गाना आया है तो बारिशों का मौसम नहीं, आज है। हमने और, स्पेशली 2 दिन जो सूखा पड़ा था, आज तभी बारिश बहुत करवाई है। मुझे पता है, उन्होंने क्लाउड सीडिंग किया है, बोला कि वो फील तब आएगा। तो वेरी वेरी thrilled, very happy to have 2 beautiful songs in this film, हल्की हल्की बारिश, and of course मन्नू क्या करेगा टाइटल ट्रैक। और आकृति, हो जाए थोड़ा सा। मैं गाने के पहले डेफिनेटली एक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ललित जी, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस सॉन्ग। व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग, मैं सबको बताना चाहती हूँ, यू नो, आप लोग 30 सेकेंड सुन रहे हैं, प्लीज़ ये प्रॉमिस करिए कि घर जाके जब ये म्यूज़िक ऑफिशियली बाहर होगा तो आप लोग इसे तसल्ली से बैठ के, सिर्फ ये नहीं, पूरी एल्बम तसल्ली से सुनेंगे एंड यहाँ वहाँ शेयर करेंगे, बिकॉज उसके बिना that's the kind of love, that's the kind of pyar that the music that's coming out right now requires. And you hear it for 3 minutes, 4 minutes, every song on an average, but you have no idea the number of months that go behind making each track. And एक एक गाने को बनाने में जो टाइम लगता है, उसके बाद हमारा रोल आता है जब हम स्टूडियो में जाते हैं। अक्सर 99% रिकॉर्डिंग्स में तो you know, you just reach, you write the lyrics, you hear it and you sing it. But the world of difference जो आपको इसमें सुनाई देगा, वो इसलिए सुनाई देगा क्योंकि ललित जी बाकायदा सब सिंगर्स के साथ बैठ के रिहर्सल्स एंड रिहर्सल्स एंड रिहर्सल्स करते हैं, so that it comes out exactly the way he has envisioned it, imagined it. So I think we all need to put together a big round of applause for Lalit ji. आकृति, is that the norm these days, या फिर ये एक It's अजूबा unheard है? of. Really? It's unheard of. बहुत बढ़िया। It's very, very rare.
एंड सच कहूँ तो मैं अभी भी मैं हील्स पहन के थोड़ी सी ऐसे हो रही हूँ बिकॉज उनके गाने सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन बहुत ट्रिकी होते हैं तो बिकॉज डांट पड़ी है क्या? हाँ डांट पड़ी क्या? पहले ही बोल दिया था उन्होंने ऐसे 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 करके ना अच्छे से गाना तो मैं बोल रहा हूँ फिर उन्होंने बाद में कहा हाँ अच्छा गा लिया तुमने तब मुझे सांस आई है फाइनली तो हो जाए the two of you such wonderful compliments to each other and Shan will of course have the title track इसके बाद भी पर पहले ये हो जाए. ठीक जी जी बिल्कुल. तो जावेद अख्तर साहब के बारे में इफ यू वांट टू से समथिंग. अब सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, जावेद साहब के बारे में क्या ही कहें. मैं तो सोच रहा हूँ एग्जाम जल्दी से कर लें ताकि हम पास हो जाएं और तो शुरू कर दे. स्केल आप कुछ बता रहे थे. अच्छा. हल्की हल्की बारिश है भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले. हो मध्यम मध्यम सांसें दिल जल्दी जल्दी धड़के, सारे पल सपनों में ढले. गाता है ये सारा समा, सुनता है जिसे आसमां. देखो जरा आ गए हैं हम तुम कहाँ. जहाँ नशीली है हवा क्या जाने दो. पूछूं कैसे तुमसे, क्यों हो यूं गुमसुम से, बोलो क्या ख्याल आ गया है. हैरा हैरा सी हूँ, लिप सिंक विद मी. जागी या सोई हूँ, दिल में ये सवाल आ गया है. वाह. हल्की हल्की बारिश बारिश भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले. Just to see two wonderful talents just doing it live on stage. बड़ी round of applause ladies and gentlemen. बड़ा मुश्किल होता है, कोई मॉनिटर नहीं है, कोई रिहर्सल नहीं की है. You know there's nothing in the ears. It's just so wonderful. बुरा है सारा जमाना, दिल घबराए रे. ए भला भला है तू यार, तेरी फिक्र सताए रे. मन्नू मूड मनमाना है, मन्नू कभी मनाना है. मन्नू राम ही जाने मन्नू तेरा क्या होगा. मन्नू कभी लगता हीरो, मन्नू कभी लगता हीरो. मन्नू राम ही जाने मन्नू तेरा क्या होगा. Killing it, Shan. सर कुछ शब्द भी हो हमारे- जाए. आपको हमने स्टेज पर अभी बुलाना चाहेंगे. कुमार भाई जो सारे जो man, लिरिक्स लिखे, बहुत सारे तालियां हो जाए सर के लिए. वर्ड्स है इसमें. थैंक यू वेरी मच. देखो पहली बात तो ललित सर ने बोल दिया इस फिल्म का बेस्ट गाना संजय सर ने लिखा. मेरे हाथ लगा मन्नू, मैंने भी निबेड़ दिया उसको. तो शान सर ने गाया गाना. थैंक यू ललित सर. काम मैं करता रहूँगा, आगे भी करूँगा, लेकिन आपके साथ लिखा हुआ हर गीत मेरे लिए हमेशा खास रहेगा. अच्छी बात तो ये है, बहुत अच्छी बात ये भी है कि इनके बेटों के साथ भी मैं गाना फिल्म कर रहा हूँ एक. Fantastic. तो उसके लिए मिल तो दिल मेरा भी टूटा है सर, बट मेरे को मन्नू गाना दिया आपने सर. लेकिन हिट वाला स्टैम्प तुम्हारे कुमार पाजी के पास है. वो क्या करें, लगा हुआ स्टैम्प. मैं क्लब कभी गया हूँ ना, सारे क्लब के गाने लिखवाते हैं मुझसे. क्लब चला गया तो क्या धमाल करूंगा ये बताओ मुझे. सर आप हर एक गाने में आप आराम से लिख पाते हो. मुझे लगता है आपका राइटिंग प्रोसेस क्या होता है. कई बार लोग पूछते हैं ना, हाउ डू हिट लिरिसिस्ट मैनेज टू कीप इट गोइंग. क्या होता है, मूड के हिसाब से आप ऐसे ही शब्द लिखते रहते हो और बाद में भी ढांचे में डाल देते हो, या व्हाट इज योर ब्लूप्रिंट? हिट टैग लोग देते हैं आपको, आप तो अच्छा काम करते हो, लोग बोलते हैं हम हिट हैं, बट हम हमेशा गाने की बेहतरी के लिए लाइक कोई सिचुएशन आती है तो पहले धुन बनती है. गाने की भी धुन बनी थी तो डायरेक्टर साहब सिचुएशन बताते हैं आपको, फिर उसके मुताबिक जो शब्द होते हैं उसके इर्द गिर्द गाने चाहिए. तो वो उसके काबिल जो शब्द होते हैं हम हमारे तक पहुंचते हैं, हम उसको असेंबल करते हैं, 4 शब्द जोड़कर लोगों का गीत बनता है, पर मेरा जादू बन जाता है बस. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच आकृति. थैंक यू सो मच शान. थैंक यू सर. थैंक यू. कुमार सर के लिए तालियां हो जाए, आकृति एंड शान के लिए भी. थैंक यू डार्लिंग. बहुत बहुत मुबारक. जी जी चालू है मैम. बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत बहुत व्योम को, साक्षी को, जन्नत जी को और शरद जी को, पूरी टीम को, ललित जी को, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो. इसमें पूरे 2 नए फूल इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, तो हम लोग तो दुआ करेंगे कि बहुत कामयाब
ऐसी खुशबू इनकी बिखरे कि एक पता नहीं क्यों मुझको ये तो पूरा, मैं अभी तो म्यूज़िक, मैं लखनऊ से हूँ और फिल्मों में कई बार गाने गाए हैं, लेकिन ये पहली बार मैं किसी म्यूज़िक लॉन्च में आई हूँ। और उसका कारण सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा गाना गाने के लिए कहा गया था जो शायद आज मेरी पहचान बन चुकी है, तो मैं बहुत खुशी से आई। और इस गाने से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, आपके हम लोग सब फ़ैन रहे हैं। अभी तो उदित जी, शान जी इतनी बातें बता चुके हैं, हम लोग कब से आपके फ़ैन हैं। और अचानक मुलाकात हमारी होती रही, अचानक ललित जी का फ़ोन आया और मुझे लगता है आप साथ बैठे थे और साथ में थे और आपने कहा कि मालिनी जी, वी वांट सैया मिले लड़कैया इन द फिल्म एज इट इज़, सो आर यू ओके? मैंने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल करते हैं। और फिर मैं आई बॉम्बे, आपके संग रिहर्सल हुआ। मैं कभी भूल नहीं सकती कि आज के दौर में फोक जैसा होना चाहिए था, लाइव म्यूज़िक के साथ, म्यूजिशियन चारी भाई वगैरह थे और नितिन शंकर जी के साथ स्टूडियो में, एंड आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू अदिति। ऑफ कोर्स इट वॉज अ थॉरो प्रोसेस दैट आई एंजॉयड। मज़े की बात ये हुई जब उन्होंने बताया कि वी वॉन्ट यू ऑन स्क्रीन, आप जैसी हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप भी गाने में थोड़ी देर के लिए आएँ। और कमाल की बात ये बस हुई कि गाना तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन शूटिंग से 4 दिन पहले आई इंजर्ड माई रिब्स एंड आई हैड अ फ्रैक्चर इन माई रिब्स। और देहरादून हरिद्वार में शूटिंग हो रही थी और मैंने कहा कमिटमेंट है तो मैं ज़रूर आऊँगी और आपको। आई वॉज इन डीप पेन और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जहाँ मैं बैठी हूँ सोफ़ा लगा है, क्योंकि उन्होंने ख़ास इस बात का ख्याल रखा कि आपका यदि मन करे तो उठिएगा, मन करे तो नाचिएगा। बट जैसे कहते हैं कि एन आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज एन आर्टिस्ट, आई वॉज इन पेन बट आई डांस्ड एंड आई कैन नेवर फॉरगेट पूरा वो जो मंजर था। और एज एन आर्टिस्ट हम लोग के भी फ़ैन मोमेंट्स होते हैं। आई वॉकिंग अप टू कुमुद जी एंड टेलिंग हिम व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज़। पूरा वो शाम का पूरा वो माहौल। सबसे बड़ी बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ। लोग ज़रूर फोक को शामिल करते हैं म्यूज़िक को अपने लाइब्रेरी के लिए, अपने रेpertoire के लिए। अक्सर इंसाफ नहीं होता उन गानों के साथ, कहाँ यूज़ किए जा रहे हैं और किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं। आई वाज सो हैप्पी कि जो बुलौआ जैसे हमारे यहाँ शादियों में इम्प्रॉम्प्टू डांस म्यूज़िक होता है, एंड विच इनफैक्ट ये बहुत मैं कह सकूँ कि मुझे बड़ी विंटेज फीलिंग आ रही थी इसको देखकर। और आज जो ज़माना चल रहा है फिल्म में, म्यूज़िक में, कि वी आर ऑल गोइंग बैक टू आवर रूट्स, समवेयर 90s इज़ इन, 2000 इज़ इन। तो आज आपके जितने रोमांटिक गाने भी हैं, क्या गाते हैं शान आप, मतलब वाकई आप, मैं भी जस्ट सुन रही थी, टाइमलेस आवाज़ है आपकी उदित जी की। आई थिंक इंडस्ट्री इज सो ब्लेस्ड टू हैव यू एंड सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। और ये दोनों बच्चे इतने प्यारे हैं, आई कैन टेल यू, हम लोग भी बहुत अनुभव देखने का रहा। आई थिंक दे आर हियर टू स्टे, बोथ ऑफ देम, दे आर गोइंग टू रॉक इट, या बोथ ऑफ देम। मालिनी जी, एक जुगलबंदी हम चाहेंगे स्टेज पर। जरूर जरूर। इसके लिए मैं सांची को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। नहीं, बट उनको आना भी चाहिए ना। हाँ, नाचना चाहेंगे, आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो चलो, कोई अगर होनहार लड़का है जो अपना हाथ खड़ा करना चाहेगा। ये खुद असल में चाह रहे हैं, ये खुद। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ये गलतफहमी में हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलो ठीक है सर। सर आप ना नहीं कर सकते हैं सर, आप ही की फिल्म है। आइए सर। ऐसा है ना, अभी गाना शुरू करते हैं, मुझे लगता है सब आ जाएंगे। प्लीज प्लीज जी बिल्कुल, गाना तो शुरू होने दीजिए। सी उमरिया में अरे ब्याह के आई, अरे मैं भोली सैया ना धान, अरे हाँ कैसी विपत पड़ी मोरी गुइया, हर कछु न बूझे अजान हो, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं,
सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं, सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं, सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, हाँ सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। 15 बरस की मैं अरे गौने पे आई, अरे गौने पे आई गुइया गौने पे आई, गौने पे आई गुइया गौने पे आई, 15 बरस की मैं गौने पे आई, सैया सैया उड़ावे कनकैया मैं क्या करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं क्या करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, हाँ सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत आभारी हैं हम कि आज एक्चुअली शी हैज ग्रेस दिस ओकेजन। जैसे खुद बोला कि पहली बार वो आई हैं एक ऑडियो म्यूजिक लॉन्च पर, सो दिस इज इनक्रेडिबल। एंड ऑल्सो आपका जो रिश्ता है सर के साथ में, प्रोड्यूसर के साथ में, आई थिंक ये बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि फॉर समथिंग लाइक दिस इतने सालों के बाद आप आ गए हैं, तो इसी के लिए ताली हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर एक जेस्चर की भी और तारीफ करना चाहूंगी। जन्नत जी कहाँ हैं? वेयर इज शी? जी। आई रियलाइज दैट आई वाज इन पेन एंड किसी भी तरह से बस मैं आई थी कि करना है शूट, और पूरी रात हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग आई हैड टू लीव, और उन्होंने कहा कि हमको जैसे शूटिंग में होता है कि जो हमको और क्राउड के संग सीन्स करने हैं तो हम ड्रेस आपकी रख सकते हैं क्या। आई हैड, जो आप देख रहे हैं वो पूरा पर्पल मेरा खुद का लहंगा था, तो मैंने कहा बिल्कुल आप रख लीजिए। और एक हफ्ते बाद जब उन्होंने वापस भेजा, शी सेंट अ ब्यूटिफुल बनारसी साड़ी ऑल्सो अलॉन्ग विद इट, कि आपने एक बार मेरे कहने पे आपने अपना लहंगा दे दिया। आई थिंक ये पूरा बहुत प्यार और बहुत अपनापे के साथ फिल्म बनी है, और ऐसा नहीं होता तो ललित जी कहाँ से सैया मिले लड़कैया के लिए सोचते। ललित जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लगता है अभी तो गाना आधा आया है, अभी पूरा नहीं आया था। इट्स अ शॉर्टर वर्जन, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर सॉन्ग्स विद यू। Thank you so much, ma'am, and have you on stage as well, sir. Big round of applause, ladies and gentlemen. And जब इनका आशीर्वाद आ जाए और इनकी वो जैसे आंख आ जाए, this boy is going to go a long way, as we all know. Shah Rukh Khan, well, that was Vivek sir himself who discovered him. Yes, sir. Can we have you on stage, please, ladies and gentlemen? Big round of applause. Ashish ji, welcome, welcome. Cabinet Minister Ashish Shalar Sahab, always making the most important entry. Sir, Namaskar Ashish ji, how are you? Advocate Ashish Shalar, ladies and gentlemen, and Cultural Minister of Maharashtra. Big round of applause. Ashish ji, आप नीचे नहीं बैठ सकते? Can we please have you on stage, sir? Welcome, sir. Good to see you again. Ladies and gentlemen, we've been graced with the right people at the right occasions. And a small token of thanks from our film for Ashish ji. Mike, please. आशीष जी, पहले we'll do a photo op, फिर मैं कुछ शब्द लूंगा आपसे।
आप गा सकते हैं वैसे सर, वी बीन हैविंग सम अमेजिंग सिंगर्स, बट जरूर कुछ शब्द, बिकॉज योर, मैं आशीष जी के बारे में ये भी बोलना चाहूंगा, ऑलवेज सपोर्ट्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सो मच, एंड दैट्स व्हाई हम आभारी हैं कि आज हमारे स्टेज पर भी हमारे पास आए हैं। सर प्लीज कुछ शब्द हो जाए। भैया आप कोई भाषण करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मंत्री आता है तो भाषण करता ही है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कल्चरल अफेयर मिनिस्ट्री मेरे पास है, और देश की कल्चरल हब देश का ये मुंबई है, और मुंबई में भी इतने सारे बॉलीवुड और फिल्मों का निर्माण होता है कि जिसके कारण पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है। और मन्नू क्या करेगा मुझे नहीं पता क्या करेगा, और पिक्चर की स्क्रिप्ट मैंने देखी भी नहीं है। अच्छी होगी ऐसी अपेक्षा है, अच्छा ही काम होगा, लेकिन उसमें कुछ और होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि जतिन भाई मैं कोई एक फिल्म के, ललित भाई के एक फिल्म के प्रोग्राम में गया था, बाद में उस फिल्म का कुछ, अपने यहाँ तो डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ इशू अच्छा ही होता है, और मेरे नाम से मंत्री ने ये कह दिया करके चिपका दिया, और असेंबली में मुझे आंसर देना पड़ा। तो मन्नू क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मन्नू अच्छा करेगा ऐसा मेरी अपेक्षा है, और इसके लिए मेरी फिल्म को भी शुभकामनाएं हैं। आज म्यूजिक लॉन्च है, और मेरे दोनों मित्र शान भाई भी यहाँ पर आइए, शान भाई आइए, और उदित जी भी यहाँ पर है, जरा उन दोनों के लिए ताली जोरदार बजाइए। और ललित जी तो सुपरस्टार है, इन्होंने काफ़ी को सुपरस्टार भी बनाया है, और इसके कारण आपका काम अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला उसका होता है, तो इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं हैं। और सभी फिल्म्स के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर, इन सबको शुभकामनाएं। और अमित भाई, वो भी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई है, एक्टिंग भी किया है, लॉयर भी है, तो उनको भी शुभकामनाएं। आप सबको ये पिक्चर बहुत आनंद दे, इस तरीके का बना है ऐसा मानकर शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ यू कुड जस्ट हैव अ सीट सर। तो हमारे लिए तो एक रियूनियन सा हो गया कि हमारी सारी टीम के साथ हम फिर मिल रहे हैं। ये फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। शायद पिछली, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पिछली फिल्म बनाने मुझे 6 साल लगे बट ये फिल्म 6 महीने में बनी थी, और इसका बहुत सारा श्रेय मैं शरद जी को देना चाहूँगा। इनका विजन था, स्क्रिप्ट इन्होंने सेलेक्ट की थी, और मुझे उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया कि मैं इस सब्जेक्ट पे काम कर सकता हूँ। मुझे फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई। ये कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी है, और शायद कमिंग ऑफ एज मेरी पिछले फिल्मों के साथ जुड़ सा गया है। वो मैंने क्लब 60 की थी, वो भी कमिंग ऑफ एज थी। बिनियान फैमिली की, वो भी कमिंग ऑफ एज थी, 2 जनरेशन्स की, और यहाँ भी 2 यंगस्टर्स की कमिंग ऑफ एज है। सो मेरे लिए ये बहुत ही एक बढ़िया सब्जेक्ट था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी सौरभ ने, और सबका बहुत सहयोग रहा। शरद जी का फुल सपोर्ट रहा। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, और हमारे खाने पीने का इतना बढ़िया ध्यान रखा प्रोड्यूसर ने कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और मिठाइयाँ जो सेट पे आती थी, और ऐसी ऐसी बालूशाही और छीने की मिठाइयाँ हमने खाई, तो कुछ मिठास जो आपको फिल्म में दिखेगी उसका बहुत सारा श्रेय शरद जी को जाता है। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल माय टीम इज़ हियर, राघव, द DOP, लीना, द वंडरफुल सेट्स, एंड राजेश, आप थोड़ा लक हमारी फिल्म पे भी रब कर दीजिए, सैयारा वाला, चारू, एंड हाँ लवीना, एंड everyone, thank you so much. It was a wonderful experience, and I'll cherish all my life. And Vyom and Sachi, they were like wonderful. They gave their best, and it was मुझे अब शायद
नए न्यू कमर्स के साथ काम करने का एडिक्शन हो रहा है आफ्टर बिनी एंड दिस ऑल्सो द न्यू कमर्स, सो आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड दैट शायद अगली फिल्म में भी, और न्यू कमर का शायद सीजन भी चल रहा है अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एंड लास्ट लेकर आते हैं, जब आपने व्योम और शची को चुना तो क्या चीज़ें थी जिन्हें देखने के बाद आपको लगा कि हाँ दे आर द राइट चॉइस फॉर दिस फिल्म? आई थिंक एक तो जो कैरेक्टर था मन्नू और जिया का, तो जब व्योम को मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि बस उसमें फिट हो रहा है वो। सो एक होता है ना कि एक होता है ऑडिशन कैमरे के सामने और एक ऑडिशन होता है रियल लाइफ में, तो मन्नू का तो रियल लाइफ ऑडिशन हो गया था। सांची जब जिया का रोल था तो हमने बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया और फाइनली एक चॉइस हमारे पास अनीत थी जो सैयारा में शी इज़ बिकम अ सुपर हिट, एंड देन वी हैड सांची। बट एक था कि सांची को देख के लग रहा था कि सांची जिया है, तो जब मुझे और संजय दोनों को ये कन्विक्शन हो गया तो ये हुआ कि मन्नू और जिया को फिर कास्ट करते हैं। और आई थिंक जब पूरी फिल्म बन गई तो यू नो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर आप फिल्म को देखते हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी और चेंज करी। बट एक चीज़ थी कि मैंने इन दोनों को भी बोला कि मन्नू और जिया की एक्टिंग में हम कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाए। दैट वाज फैबुलस, लगेगा ही नहीं कि इनकी पहली पिक्चर है। वेल डन। हेलो हेलो, यहाँ शरद जी, हम लोग ने बहुत ब्यूटीफुल वाइफ ने हम लोगों को लड्डू भी दिए थे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो साल है ये पूरा म्यूज़िकल ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी फिल्में आ रही हैं ना उसमें म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सैयारा अभी काफ़ी हिट हुई और उसमें भी नए आर्टिस्ट थे और मतलब उनको कोई नहीं जानता था, तो उस इतनी बड़ी हिट फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी फिल्म को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि इसमें भी सब कुछ वैसा ही है, म्यूज़िक अच्छा है, हीरो हीरोइन अच्छे हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको? चलिए देखिए, एक तो पहली बात आपको पेड़े दिए थे बेसन के, मुझे याद इसलिए क्योंकि वो 4-5 बार उसका ट्रायल हुआ था बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए। ओके ओके। आई थिंक सैयारा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा दैट पीपल स्टार्टेड टू गो बैक टू द थिएटर। फिल्म हैज़ डन वेरी वेल, और उम्मीद तो हमें भी यही है कि मन्नू और जिया जो काम कर रहे हैं वो भी ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी। और एक जो एक हो गया था कि न्यू कमर्स की पिक्चरें शायद नहीं चलती हैं, तो वो जो सैयारा ने एक मिथ को ब्रेक कर दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ सैयारा, एंड दैट्स अ ग्रेट फिल्म। हमारा जो पूरा इसमें इस फिल्म में मेहनत रही है कि हम कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें, और बाकी तो आप लोग जज करेंगे, अब तो ऑडियंस के हाथ में है। बट वी हैव डन व्हाटएवर वी कुड टू मेक समथिंग स्पेशल। हेलो हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी म्यूज़िकल ट्रीट हमें आज मिली है। इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे सामने एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। सो बिग हैंड टू यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस म्यूज़िकल ट्रीट। माई क्वेश्चन इज टू व्योम, एंड एज शरद सर सेठ की ऑडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो एज अ पर्सन, व्योम एज अ पर्सन एंड मन्नू एज अ कैरेक्टर, इन दोनों में आपको क्या रिलेटेबल लगा? सी, मन्नू की जो इनोसेंस है ना, अच्छा पहले मैं इससे स्टार्ट करूँगा। मेरे को ऑडिशन देना पसंद है भी नहीं, वैसे सही बताऊँ तो मुझे ऑडिशन देना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट सी, वेरी ऑनेस्टली, मन्नू की जो इनोसेंस है वो जब भी आप देखोगे ना वो कैरेक्टर को, शायद से यहाँ पे इतना हम ज़्यादा देर नहीं दिखा पाए जो आपको शायद से उसको रिलेट कर पाओ, लेकिन द कैरेक्टर इज सुपर रिलेटेबल। आप बोलोगे यार एक मन्नू हमारे घर में भी है, एक पड़ोस में है, एक मैं क्या पता, आप बोलो मैं खुद ही मन्नू। ही इज कंफ्यूज, ही इज इम्परफेक्ट, एंड दैट्स हिज परफेक्शन। यू नो, यू लव समवन समटाइम्स नॉट बिकॉज दे आर परफेक्ट, you love them because you know that they're imperfect and you still love them. So that's Mannu for you. And one more question, because I'm sure the film is going to be really, really very special experience for you. Any Bollywood personality you would like to show this film? सबको यार, why would I just choose यार? But seriously, अगर आप बोलो कि दिखाना सबको है, फ्रंट रो में कौन बैठेगा, तो आई वुड वांट के शाहरुख सर बैठे हों, ओहो रणबीर कपूर बैठे हों, और ऋतिक रोशन सर बैठे हों, सब बैठे हों, मतलब पूरा बॉलीवुड शुड काम नहीं यार, मतलब सपोर्ट टिकट लेके, ऑफ कोर्स टिकट लेके।
तो अब पता चल रहा है एंड आप देख रहे हो मैं बुला भी फैमिली वालों को रहा हूँ जिससे टिकट ज़्यादा बिके. यस तो अब पता चल रहा है मन्नू एक्चुअली क्या करेगा. 1% भी नहीं, very honestly, but I really hope so आप कुछ पता लगा पाएं. But thank you so much, you're very sweet. Thank you. हेलो लल्लू जी. भी का गाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर जब आपका नाम जुड़ जाता है तो आपके लिए कितना ज़्यादा एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस गाने को और भी ज़्यादा खूबसूरती से लेकर आ पाए जनता के सामने. देखिए, एवरी टाइम इन एवरी फिल्म इट्स अ न्यू चैलेंज, इट्स अ न्यू अप्रोच. जब से मैं कर रहा हूँ तब से टाइम बहुत बदला है, टेक्नोलॉजी बदल गई है. मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत म्यूजिशियन हूँ, हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ और सिचुएशन को समझ के काम करता हूँ. मन्नू का म्यूज़िक जो हुआ है वो बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ है उससे मुझे. मैंने पिक्चर नहीं देखी है मगर मुझे उम्मीद है कि संजय ने पिक्चर अच्छी बनाई होगी और गाने जो हैं उसकी पिक्चराइजेशन में भी शरद जी का इतना हाथ है कि मैं क्या बताऊँ. और बस यही उम्मीद है कि म्यूज़िक का अच्छा दौर आ रहा है. हम लोग चाह रहे थे कि हम पहले आ जाएं मगर सैयारा पहले आ गई. मगर जहाँ तक मेरा कहना, अब तो कहना ठीक नहीं है ये, मगर ये म्यूज़िक का लेवल बहुत अच्छा है. अगर ये पिक्चर अच्छी बनी होगी तो ये भी पहुँच जाएगी वहाँ जहाँ इसको पहुँचना चाहिए. बाहर से आए थे, बाहरी थे और अब व्योम को लॉन्च कर रहे हैं. व्योम भी बाहर से आए हैं. क्या उम्मीदें हैं व्योम से और क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? जब मैंने शाहरुख को पहली बार देखा था, सॉरी माय वॉइस इज अ लिटिल हॉर्स, आई सॉ हिज एनर्जी, आई सॉ हिज चार्म, हिज करिश्मा, एंड देन आई सॉ हिज टैलेंट. When I met Vyom, we became friends, we started talking. I saw the same qualities of energy, charm and talent in Vyom. Now, I know how I worked with Shahrukh and where he has reached, and I hope and pray to God Almighty that Vyom reaches where Shahrukh has reached. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा ज़रूर कि विवेक इज़ नॉट ओनली लॉन्च शाहरुख, ही इज़ ऑल्सो लॉन्च्ड जतिन ललित. आई टेल यू हाउ. बिकॉज नो वो बहुत लंबा बोलेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ. जब उदित जी ने गाना गाया था बिन तेरे सनम, माई फर्स्ट सॉन्ग, मैं तो एकदम स्टार्ट हो रहा था, देयर वाज नो वर्क एट ऑल, वी वर लाइक नोमैड्स एट होम. ढूंढते ढूंढते ये आए कि ये नए लड़के कौन हैं. और जिस पिक्चर के लिए शाहरुख साहब को ये लेके आए थे, राजू बन गया जेंटलमैन, उसके लिए ये ढूंढ रहे थे कोई अच्छे नए टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर, और उसमें इन्होंने हमको अप्रोच किया और वो पिक्चर हमको इसलिए मिली. वो पिक्चर मिलने की वजह से हमको मिली कभी हाँ कभी ना, और जो जीता वही सिकंदर भी उसी दौरान मिल गई. तो वो जो स्टार्ट इनके साथ हुआ वो लग बहुत जुड़ा और बहुत ही अच्छा काम हुआ. वी नेवर लुक बैक इन द करियर. सो दैट्स बीन अ ब्लेसिंग. और इस म्यूज़िक के हर सेशन में विवेक थे, बहुत इन्वॉल्वमेंट से काम किया. इनफैक्ट जन्नत नहीं है यहाँ पे, वो अभी भी काम ही कर रही हैं. शी वॉज देयर इन एवरी सिटिंग एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम क्रिएटिंग दिस म्यूजिक. एंड थैंक यू विवेक फॉर एवरीथिंग फॉर ऑल दीज ईयर्स. So I must just tell you one thing. The first time I met Lalit, Shahrukh was with me because I went to meet him for the music of Raju Ban Gaya Gentleman, and I made sure that Shahrukh sat at all the sittings. And the first person that Vyom met on the unit was also Lalit. He met him first. He was as much involved in the music as Shahrukh was in that music. So thank you God and thank you everybody. सची है. सची, मेरा सवाल आपसे है. जब हम बहुत बार जिक्र हुआ सैयारा का और हम जो जेनजी जनरेशन है इसी तरह की फिल्में या इसी तरह का कंटेंट पसंद करा जा रहा है, आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, एक बहुत परफेक्ट टाइम पे फिल्म आ रही है? और फिर कहीं डायरेक्टर साहब ने भी एक किस्सा बताया कि अनित पड्डा वाज सपोज टू बी हियर इन दिस फिल्म जहां आप मौजूद हैं, तो कंपैरिजन भी होंगे. आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. मैं पहला वाला जवाब पहले दूंगी. आई फील टाइमिंग वाइज ऑफ कोर्स सैयारा हैज़ चेंज्ड अ लिटिल बिट of things in the industry. लोग ज़्यादा जा रहे हैं सिनेमा थिएटर्स एटलीस्ट टू सी न्यू कमर्स. वो रिसेप्टिव हैं एक नई जोड़ी को देखने के लिए. होपफुली हमारे लिए भी जाएंगे. एंड हैविंग सेड दैट,
I wasn't aware about her audition, so I wouldn't be the correct person to answer. But I just feel very grateful to have got this film, and कि मैं यहाँ पे सबके साथ खड़ी हूँ आज. I'm very very happy and very grateful. To the director, sir, here. Sir, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उतना मेरे लिए काफ़ी है. हाँ सर. मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या ये एक इंटेंशनल एफर्ट था? जब मैं आज के कंटेंट की बात करता हूँ, जहाँ सैयारा ऐसा कंटेंट चल रहा है. सॉरी, अब क्वेश्चन. मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह का कंटेंट आज की यंग जनरेशन, जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो पसंद कर रही है, तो उसको भी मद्देनजर रख के आपने इस फिल्म पे काम किया है, और आप मानते हैं क्या ये बहुत माकूल वक्त है इस फिल्म को रिलीज करने का? आई थिंक आज के समय में जो हमने जब उस समय किया था, तो ये पता नहीं था न्यू कमर का, मतलब ये सोच के नहीं किया था कि आज की जनरेशन के लिए ऐसा कुछ. द सब्जेक्ट वॉज सो रेलिवेंट, क्योंकि आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लाइफ में समझ में नहीं आता कि करना क्या है. सो हाउ टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ. तो जनरली क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसमें आप जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं और उसमें आपको प्यार भी हो जाता है, तो लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है. हमारे कैरेक्टर को दिल टूटने के बाद पर्पस मिलता है. हम चाहते हैं कि आप अपना पर्पस, आज की जनरेशन अपना पर्पस दिल टूटने के पहले ढूंढ ले. दैट इज व्हाट वी वांट टू से. बट ऑल्सो जी, सैयारा को 1.5 महीने हुए सर बॉक्स ऑफिस पर. ये तो बहुत पहले से बन रही है सर. अभी पता चला है कि 350 बने हैं ना. एग्री. सो अभी पोस्ट में तो सर चेंज नहीं कर सकते. सो एनीवे, सो व्हाट वी विल डू इज कॉल